Prism has got a peculiar shape. ये हमने एक शेप बनाई ऐसी और इसमें पूरा ग्लास भर दिया. तो this has got this one plane, these two planes are inclined to each other. ये भी प्लेन है, ये भी प्लेन है, इधर भी प्लेन है. So that is a prism. इधर से हमने बल्ब जलाया, उससे लाइट रेज ऐसी आती है और इधर से निकल जाती है. Now these two planes where the light is incident and the light is going out are known as refracting surfaces. There are only two interfaces, this interface and this interface, where refraction takes place. So we call them refracting surfaces. This and this surface, they do not participate in refraction. ठीक है? So there are only two surfaces which participate in refraction. अब इसका जब हम डायग्राम बनाते हैं, these two surfaces, refracting surfaces, we take like this so that we can make a diagram of the ray. So these are the two refracting surfaces. Okay, surface 1, surface 2, and here is the medium. This medium has got refractive index mu. Now a ray of light is incident at surface number 1. This is PQ, surface number 1. Here the medium will change. This is interface. So this will not go in its original direction. This is the original direction. लेकिन जैसे ही यहाँ मीडियम चेंज होता है, this will not go in the original direction and this is rarer to denser, so it will bend toward normal. So we need to make a normal here. तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं on this surface and this is 90 degree and this angle is angle I. This is incident ray. Incident ray and this is incident angle. Okay, now when this enters the different medium, this does not go in this path and it gets refracted, bent towards normal. So this goes like this. इस direction में चली गई. It has bent towards normal. And now this angle, we know it is known as angle of refraction. Correct? The moment it reaches here, again there is a change of the medium. फिर से mu1 से mu2 में आई थी, यहाँ से फिर mu1 में गई. So whenever there is a change of medium, there will be refraction. यहाँ पर फिर refraction होगा. इस refraction के लिए एक फिर हमने normal बनाया. जी. This was normal 1 and this is normal 2. अब ये इसका पाथ था ओरिजिनल. यहां पर जाकर ये किस तरफ मुड़ेगी बताइए? Will it bend up or down? The rule is it will bend away from the normal because it is denser to rarer. So it will bend away from the normal. And when we say away, this is normal. तो away के लिए किधर जाना होगा? Down या up? Down. Good. So यहाँ से this is normal and 2 and this has to move away. तो ये यहाँ से मुड़ जाती है like this and it goes like this. So this is P, this point is Q, this point is R, this point is S. P, Q, R, S is the path of light ray. N1 and N2 are two normals. ठीक है? Now there is a very special thing which has happened. This was the original direction when it was entering the prism and this is the direction when it is coming out from the prism. So this is outcoming ray. These two are having different directions. अब देखिए स्लैब में अभी तक हमने क्या पढ़ा था? It is slightly
there is a lateral displacement but the direction does not change. यहां पर क्या हो रहा है? The direction has changed. This thing happens in the prism. तो प्रिज्म बेसिकली लाइट रे को क्या करता है? उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है, जो कि स्लैब नहीं कर सकता. Why? The answer is slab has got both the surfaces parallel to each other, but this has got both the surfaces which are not parallel to each other, inclined to each other, meeting at a angle. Or this creates such a situation that light has to bend this way. यहां पर इसका इक्वेशन क्या है? टुवर्ड्स नॉर्मल, बट द नॉर्मल इज हियर. यहां पर क्या है? अवे फ्रॉम नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल ही तो बदल गया, नॉर्मल चेंज हो गया. सो अवे फ्रॉम नॉर्मल इज फर्दर ऑन द सेम साइड. सो दिस इज हाउ इट बेंड्स. तो ये प्रिज्म की स्पेशलिटी है. फिर से याद रखिए, व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ द प्रिज्म? इट डेविएट्स द रे फ्रॉम इट्स पाथ. दिस इज द डिवाइस व्हिच डेविएट्स द रे. अच्छा, डेविएट दैट इज रे में डेविएशन हुआ. अब डेविएशन को स्पेसिफाई करते, कहां है डेविएशन? तो आंसर है कि ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है और ये आउटगोइंग रे की डायरेक्शन है. फाइनली व्हेन इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म, तो डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ? दिस. So this angle, this one, this is change in direction. समझ आया? सबसे पहली रे ली हमने और सबसे लास्ट वाली ली, क्योंकि ये प्रिज्म में एंटर कर रही है और ये प्रिज्म से आउट जा रही है. So this angle will be known as angle of deviation. This we will not say angle of refraction. Angle of refraction कहाँ है? तो याद रखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सरफेस के एक पॉइंट पर होता है. वन, जैसे एंगल बनाते हैं एक पॉइंट पर. डेविएशन क्या है? चेंजिंग ऑफ द पाथ. अगर इसके अंदर ये रे ऐसे जा रही है तो ये जो है दिस एंगल, ये ओरिजिनल पाथ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज एंगल बिटवीन रे एंड नॉर्मल. देख रहे हो? ये क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. यहां पर ये इधर जा रही थी और बाद में इधर आ गई, तो ये क्या हुआ? एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दिस प्रोसेस. लेकिन but if we ask you what is the deviation effect of the total prism, तब हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों डेविएशन को कंबाइन करना. ये थोड़ा सा इस सरफेस ने मोड़ा, उसके बाद जाके थोड़ा सा इस सरफेस ने भी मोड़ा. टोटल कितना मुड़ गया? तो टोटल के लिए दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, दिस इज द टोटल डेविएशन एंड वी विल कॉल इट डेल्टा. This is delta. So delta is indication of deviation. But where are the angle of refractions? This is angle of refraction. अच्छा, now अब थोड़ा सा और इधर एंगल्स को देखिए. If we reverse the ray, यानी अगर हम रे को यहां से भेजेंगे इस रास्ते से, तो इसका रास्ता क्या बनेगा? According to reversibility rule, this will go like this, this and this. उस समय ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? This angle will be angle between normal and the incident ray. We will call it I. और ये क्या बन जाएगा? Normal and refracted ray. This is R. तो आप बोलेंगे ऐसा उल्टा क्यों किया? इसी को ही हम I2 R2 क्यों नहीं लिख लेते? Answer is, I want to write all the I in medium number 1 and all the R in medium number 2. ठीक है? इसलिए एक बार हम रे को इधर से टेस्ट करते हैं, एक बार इधर से टेस्ट करते हैं. Now R, I, there is a duplicacy. I will write it I1, I2, R1, R2.
Okay, so this is the description of angle. See again, I1 R1, R2 I2, and this total deviation is delta. कौन सा एंगल कौन सा है, क्लियर समझ में आया? प्रिज्म में एंटर करने के पहले रे और प्रिज्म से आउटगोइंग रे, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा. अच्छा, नाउ दिस इज व्हाट हैपेंस इन ए प्रिज्म. This angle between the two surfaces, this is known as angle of prism. Angle of prism. For the sake of calculation, we give name to this point also. This is O. Okay. What is the path of the ray? P, Q, R, S. Where are the normals? N1O, N2O. Okay, this is angle of prism. Now we have to do certain calculations to find out the relations between them. What are the relations we are having? See, we'll start. This is normal on this surface, and this is normal on this surface. 90, 90, 180. So what is the sum of these two? 180. क्योंकि what is the sum of all the four? 360. So this is 90, this is 90. So these two are, sum is 180. So we can write it, angle O plus angle A is equal to 180 degree. Right. Now, how much is this angle? See, this is I1. What is the opposite angle? ये लाइन यहां गई, ये लाइन यहां गई. How much is this total angle? No, this one. ये लाइन यहां गई, ये लाइन यहां गई. If this is I1, this is also I1. Out of this I1, make it minus. So how much is this angle? I1 minus R1. I1 minus R1. How much will be this angle? Similarly, this will be I2 कहाँ है? ये और ये पूरा I2 है, उसमें से R2 को माइनस कर दीजिए, तो ये कितना बचेगा? ये एंगल I2 माइनस R2. कहां से कहां तक? This one. नहीं, right, I1 minus R1, and this is I2 minus R2, right? अब A के कुछ कॉम्बिनेशंस और देखिए. How much is this angle? This is normal, this is R1, ये पूरा 90 है, ये R1 है, तो ये कितना हुआ? 90 minus R1. How much is this angle? 90 minus R2. So how much is this? A. तो A plus 90 minus R1 plus 90 minus R2. This is equal to all the three angles of triangle. So how much it is? 180. ये आपको समझ में आ रहा है? फिर से ये छोटा एंगल कितना? R1. ये वाला एंगल कितना? I1 minus R1. ये वाला एंगल कितना? यहां से यहां तक 90 minus R1. अब इससे बताइए, वेरी गुड. इससे हमको क्या पता लगा? 90 90 180 कैंसल, एंड A is equal to how much? R1 plus R2. This is one relation. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फिर से इधर देखिए,
this ray and this ray, this, how much is the angle between them? Delta, angle of deviation. ये डेल्टा किसके बराबर है? इंटरनल टू एंगल्स, दिस एंगल एंड दिस एंगल. फिर से मैं इसको यहां क्लियर बना देता हूं आपको. Q, this point and this point. ये कौन सी रे है? जो कि ये इनकमिंग रे है, ये पॉइंट Q है. ये देखिए, ये वाली रे, ये रे है, और ये बाहर आने वाली रे, ये रे है. ये इनकमिंग रे, आउटगोइंग रे, दोनों के बीच का एंगल कितना? डेल्टा. दिस वी हैव रिटन वेरी क्लियरली, डेल्टा. अगर ये एंगल डेल्टा है, देन दिस इज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स. दिस इज अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री. तो इसको हमने लिखा डेल्टा इज इक्वल टू, ये एंगल कितना है? I1 माइनस R1, और ये एंगल कितना है? I2 माइनस R2. सो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2. I1 plus I2 minus R1 plus R2. This is delta equal to, right? Okay, इसको नोट करिए. Now, there is a relation between I and R, and that relation we all know. Mu is equal to okay. For thin prism, these angles are very small, so I and R, sin I and sin R can be taken equal to I upon R, right? अब अगर ये ऐसा है तो I किसके बराबर होगा? Therefore, I is equal to mu into R. I is equal to mu into R. ये हो गया. अच्छा, अब अगर ऐसा है तो I1 किसके बराबर होगा? इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2. Therefore, equation 2 is delta is equal to I1. I1 I will write mu R1. इसको मैं थोड़ा ठीक कर दूं. This is small r, angle R. Mu into R1 ये आ गया, और ये कितना होगा? Mu into R2 प्लस mu into R2 minus R1 plus R2 as. Now in this we take common mu, and this is R1 plus R2 minus R1 plus R2. हाँ जी, इनको कैंसिल कर दें. यस, कॉमन ले सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज मल्टीप्लाइड म्यू टाइम्स. तो ये कितना हुआ? म्यू माइनस 1 R1 प्लस R2. दिस इज इक्वल टू डेल्टा. अब R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? A. So this we can write as delta is equal to mu minus 1 into A. ये रिलेशन किस किस के बीच में आया? डेविएशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. ये डेरिवेशन सिर्फ डेरिवेशन नहीं है. दिस ऑल्सो टेल्स अस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिज्म and the quantities related to prism. Prism जिस मटेरियल का बना होगा
whether it is glass, water, plastic, nylon, anything, उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर विल बी डेविएशन. जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना वो उसको ज्यादा मोड़ेगा. ये समझ आया? दूसरा ए, दिस इज ऑल्सो इन न्यूमरेटर. दिस शोज मोर इज द एंगल ए, मोर विल बी डेविएशन. ठीक है? तो डेविएशन किस किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये दोनों पर डिपेंड करता है. राइट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है और ये प्रिज्म की ज्योमेट्री है. इन दोनों पे डेविएशन डिपेंड करता है. ओके, नाउ वी गो फॉर अनदर इक्वेशन. सो दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ इंपॉर्टेंस. ये हमने एक फर्स्ट रिलेशन निकाला था, ये सेकेंड रिलेशन ये आ गया. अच्छा, अब आपको जो नंबर पसंद है आप दे लीजिए, इसलिए मैंने उसको स्मॉल नंबर रखा है. ठीक है? ओके, नाउ वी गो फॉर अनदर रिलेशन. न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये रिलेशन भी हमको काम में आता है. व्हाट इज दिस? साफ लिखते हैं इसको, डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, सो माइनस A. Yes, this is again an important relation. Delta is equal to I1 plus I2 minus A. You give it number 2. ठीक है, उससे आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी. We will give it number 3. अब ठीक है? So मुझे याद है there are 3 equations of the prism. So you will remember this. One is only A, other is delta I and A, and in third we have the relation with refractive index. समझ में आ गया? ये 3 इक्वेशन होते हैं प्रिज्म के, and there may be numericals related to all these 3. Now we come to another situation. अब ये हमको प्रिज्म के बारे में समझ आ गया. क्या समझ में आया? That whenever there are two surfaces inclined to each other, the incident ray will always deviate. एक छोटी सी चीज और है, deviate किधर होती है? In which direction? The answer is, this is angle of prism and this is base of prism. Base. So the ray always bend towards base. अगर यहां पर हम यहां से एक रे लाएंगे, ये, तो बताइए ये लेफ्ट में जाएगी कि राइट में जाएगी? सोचो, ये वाली रे. तो जब ये रे इधर आएगी, ये है A, ये है B, ये है C, तो किस फेस में से निकलेगी? किस फेस में एंटर कर रही है? AC. निकलेगी किस फेस में से? BC. तो रिफ्रैक्शन वाले फेस दो कौन से हुए? AC एंड BC. अगर ये दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हैं तो बेस कहां है? AB इज द फेस. एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा बना? C. C इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड AB विल बी बेस. अब बताइए ये जो इधर आ रही है, व्हाट इज द रूल? किधर मुड़ती है? टुवर्ड्स बेस. तो ये किधर मुड़ेगी? टुवर्ड्स बेस, टुवर्ड्स B. तो ये यहां से ऐसे आएगी और यहां से थोड़ी सी ऐसे मुड़ेगी, फिर यहां से ऐसे मुड़ेगी. दिस 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 किस तरफ मुड़े? बेस की तरफ. तो ये रूल याद रखिए, ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स बेस. अच्छा, अब हम एक ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, यहां पर हमने उसका फॉर्मूला बनाया. इस एंगल ऑफ डेविएशन से लाइट मुड़ती है और हमने देखा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूला में आता है. जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूला में नहीं आता है. तो डेविएशन
इंसिडेंट एंगल पर डिपेंड करता है कि नहीं करता? तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? इट डिपेंड्स। और ये क्या बोलता है? डज नॉट डिपेंड। तो उसकी हमने स्टडी की। तो हमने जब उसकी स्टडी की तो हमने देखा कि वो डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। ये यहां पर म्यू में मर्ज हो गया है, इसलिए हमको दिखता नहीं। So deviation depends upon angle of incidence also and we have tried it. लेकिन उसके रिजल्ट बड़े अजीब अजीब आते हैं। हम क्या देखते हैं कि आई और डेविएशन का एंगल, इनका रेशियो कांस्टेंट नहीं है। जैसे जब भी रिफ्रैक्शन होगा, आई अपॉन आर, इंसिडेंट एंगल एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है एंड दैट कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, डेविएशन में ऐसा नहीं होता। तो फिर डेविएशन में क्या होता है? तो आंसर है डेविएशन में जब जब आई की वैल्यू बदलती है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, और आई अपॉन डेल्टा कांस्टेंट नहीं होता है। उसमें क्या था? साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। आप आई को बढ़ाइए, आर बढ़ेगा, आई को कम करिए, आर कम होगा। आई और डेल्टा के रिलेशन में आई को बढ़ाइए, डेल्टा कम हो गया, आई को घटाइए तो भी डेल्टा कम हो गया। तो उस रिलेशन को देयर इज ए स्पेशल रिलेशन एंड नाउ वी विल स्टडी दैट रिलेशन। उसके बिहेवियर को हम प्रैक्टिकल में स्टडी करते हैं और ये प्रैक्टिकल आप लोग प्रिज्म का करते हैं। ओके, सो व्हाट इज दैट प्रिज्म? ये एक पॉइंट पर हमने बहुत सारी डायरेक्शन से इंसिडेंट रेज भेजी। दिस इज डायरेक्शन नंबर 1 and it goes like this and from here it comes out. So I have made it a little larger one. ये PQRS इस तरह से गई। Now there is this angle I. This is I1 and this is, ये देखिए, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये आउटगोइंग की डायरेक्शन है। तो ये एंगल कितना हुआ? डेल्टा 1। दिस इज हाउ वी मेजर डेल्टा 1। यहां नापना है, ये एंगल नहीं चाहिए, ये एंगल नहीं चाहिए, ओरिजिनल आउटगोइंग दोनों के बीच डेल्टा 1। उसके बाद हमने यहां से एक दूसरी रे भेजी और ये एंगल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। Now this angle is I2. When this I2, we find that this goes like this and ये यहां से ऐसे गया और यहां से फिर से निकला ऐसे आ गया। This is number 2 and this angle is delta 2. This angle was delta 1. तो डेल्टा 2 कैसा हो गया? स्मॉलर देन द डेल्टा 1। देखा? ठीक। फिर हमने एक थर्ड रे भेजी और आई को इंक्रीज किया। दिस वाज इंक्रीज्ड एंड वी इंक्रीज इट दिस वे। ये नाउ दिस इज I3। I3 ये यहां से ऐसे गई और जाकर ये ऐसे हो गई 3 एंड दिस एंगल, ये जो ओरिजिनल के साथ, दिस वाज द ओरिजिनल डायरेक्शन, दिस इज डेल्टा 3। बताइए डेल्टा 3 डिक्रीज हुआ कि इंक्रीज हुआ? डिक्रीज हुआ। ये ज्यादा बड़ा एंगल है डेल्टा 1, डेल्टा 2 इज स्मॉलर, डेल्टा 3 इज स्टिल स्मॉलर। लेकिन आई को हम क्या कर रहे थे?
तो जैसे जैसे आई को इंक्रीज करते हैं डेल्टा डिक्रीज हो रहा है। ओके, सो अब हमने और इंक्रीज किया आई को, ये यहां से this. Now we made it this as I4. I4 ये टोटल एंगल और बड़ा हो गया। अब ये रे यहां से गई ऐसे और ये ऐसे जाकर यहां आ गई। दिस इज 4 और ये वाला एंगल डेल्टा 4। अब डेल्टा एंगल बढ़ा कि कम हुआ? इंक्रीज। पहले 1 2 3 में क्या शो कर रहा था, अब क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन चेंज हो गई। तो पहले ये रे ऐसे ऊपर जा रही थी, यहां तक गई, फिर नीचे जानी शुरू हो गई। इससे कम ये नहीं मुड़ती, यहां से ऐसे आई फिर यहां से ऐसे चली गई ये। जबकि इसको हम लगातार क्या कर रहे हैं, नीचे लाते जा रहे हैं। और लास्ट में हमने एक रे और दी, सपोज दिस इज, एंड दिस एंगल इज I5 और बढ़ गया। अब हमने देखा I5 के रिस्पॉन्स में यहां से ये रे निकली 5। तो यहां पर क्या देखिए, ये 1 2 3 4 5 ये यहां से इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, इंक्रीज 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 एंड इंक्रीज। आई इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर देखिए ये नंबर 1, ये नंबर 2, सो इट हैज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज्ड। आफ्टर दैट 2 to 3 it has decreased. After that 3 to 4 it has increased, and after that 4 to 5 it has further increased. Yes, increase increase, ये behavior होता है। So this is a very peculiar behavior of the prism. अब इसमें हम behavior किसका देख रहे हैं? Angle of deviation का। So what we find, angle of deviation this कहीं पर भी हमको मिलता है, पर यहां नहीं मिलता। यानी डेविएशन जरूर होता है, इट इज कंपल्सरी, मिनिमम इतना तो होता ही, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो देयर इज ए वैल्यू ऑफ डेविएशन विच इज नोन एज मिनिमम डेविएशन, विच इज नोन एज मिनिमम डेविएशन। उतना डेविएशन हर प्रिज्म करता है, राइट? तो ये जो सबसे छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, दिस इज नोन एज डेल्टा मिनिमम, डेल्टा एन, राइट? तो ये सिचुएशन क्या बनी? ये सिचुएशन बनी इफ वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेजुअली, then angle of deviation first decrease and then after a certain minimum value it increase. This is the behavior of delta. That minimum value of deviation is known as minimum angle of deviation, and that is specialty of a prism, that its minimum angle of deviation, उससे कम deviation वो नहीं करेगा। Okay, so now we will write the definition of minimum angle of deviation. Okay, note करिए, that is known as angle of minimum deviation. Okay, so angle of minimum deviation, when incident angle is increased gradually, the angle of deviation initially decrease, and after obtaining a minimum value it starts increasing again.
ये हमने देखा। At that situation of minimum deviation, the angle is called angle of minimum deviation and its notation is delta m. That is angle of minimum deviation. Okay, now a very special thing happens in that situation. कौन सी situation? जब minimum deviation हो रहा होता है in that particular situation, जो कि यहाँ पर है, ये this, then this and then this. इसमें we have observed one very special thing and that thing is कि अगर हम यहां पर नॉर्मल बनाते हैं, ये these two angles are equal, these two angles are equal again, यानी दोनों आई कैसे हो जाते हैं इक्वल और दोनों आर भी कैसे हैं इक्वल। मतलब इधर वाली सरफेस के साथ इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया सेम उतना ही एंगल इस सरफेस के साथ ये बनाती। ऐसे ऊपर और नीचे नहीं होता, ये दोनों तरफ कैसा रहेगा सेम। और ये सेम कब होता है? व्हेन देयर इज डेविएशन ऑफ मिनिमम, डेविएशन एट मिनिमम एंगल। तो उस चीज को हम नोट कर लेते हैं। एट दिस स्टेट इट इज ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ I1 इज इक्वल टू I2 और दोनों को हम क्या मान लेंगे I, एंड R1 इज इक्वल टू R2 और इन दोनों को क्या मान लेंगे R। ये सिचुएशन आ जाती है। सो इट इज वेरी मच बैलेंस्ड। ये स्ट्रेट दोनों तरफ इक्वल, ये सिचुएशन आएगी। ठीक, ये कब आएगी? जब डेविएशन कितना होगा? when this deviation is minimum। ठीक है, तभी ये सिचुएशन आती है। here this angle is equal to this angle। अच्छा, जब ये सिचुएशन आएगी तो हमारे इक्वेशंस में थोड़े से चेंजेस आ जाएंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे? देखिए, अगर R1 इज इक्वल टू R2 है यहां पर, इफ R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, तो A किसके बराबर हो जाएगा? A इज इक्वल टू R प्लस R 2R। सो R इज इक्वल टू A बाई 2। देन बाय इक्वेशन 1 R is equal to A by 2। ये आ गया, R is equal to A by 2। ये समझ आ गया? अगर R is equal to A by 2 हो गया तो फिर से I1 और I2 ये किसके बराबर हो जाएंगे? I यहां पर by equation 2 I प्लस I 2I, इस माइनस ए को इधर ले आइए, क्या हो जाएगा? डेल्टा प्लस ए इज इक्वल टू 2I। तो 1I किसके बराबर हुआ? डेल्टा प्लस ए अपॉन 2। ठीक है, लेकिन ये किस सिचुएशन में होता है? जब डेल्टा कैसा होता है? मिनिमम, है ना? इसलिए ये वाला जो डेल्टा है ये इसकी कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? मिनिमम। दिस समझ में आया? सो ये हमने किसकी वैल्यू निकाली? I, और ये किसकी वैल्यू निकाली? R। क्यों? क्योंकि हम साइन I अपॉन साइन R म्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देन mu refractive index is equal to sin I upon sin R, and this is equal to sin
ऑफ डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 divided by sin a by 2, sin I upon sin r. This is our equation. I की डिफरेंट वैल्यूज के लिए r की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, तो डेल्टा m हमको कैसे पता लगेगा? सॉरी, I की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डेल्टा की डिफरेंट वैल्यूज आती हैं. दिस गोज ऑन डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग. बट हम ये कैसे श्योर हो सकते हैं कि ये इसके ऊपर नहीं गया होगा? यहां पे हो सकता है इसके करेस्पॉन्डिंग जो आई होता है वो आई हमने बनाया ही नहीं हो. इसके बीच में यहाँ पे कोई ऐसा आई होगा जिसके लिए डेल्टा और भी छोटा होगा. हो सकता है, नहीं भी हो सकता. वी वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट डेल्टा. उस डेल्टा को एग्जैक्ट डेल्टा मिनिमम निकालने का देयर इज ए मेथड, एंड दैट मेथड यू आर सपोज टू अप्लाई इन योर एक्सपेरिमेंट्स. वो ये होता है, वी मेक ए ग्राफ बिटवीन आई एंड डेल्टा. वो जो ग्राफ बनेगा, देखिए वो ग्राफ ऐसा बनेगा. इधर हम रखते हैं आई की वैल्यू आई, और इधर रखते हैं डेल्टा की वैल्यू. शुरू में जब आई ज्यादा बड़ा होता है, शुरू में आई यहां से हमने छोटा लिया. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम 25 डिग्री एंड वी टेक इट अप टू 50 डिग्री. ये 25 से स्टार्ट किया और लास्ट 50 तक लिया. तो शुरू में जब हमने 25 लिया था तो डेल्टा खूब बड़ा था. फिर हमने 30 लिया, 35 लिया, 40 लिया, 45 लिया और 50 लिया. 25, 30, 40, 50 ऐसे. तो डेल्टा पहले तो कम 25 पे ज्यादा था, फिर 30 में उससे कम हुआ, 35 में उससे कम हुआ, 40 में करीब करीब बराबर था, 45 में बढ़ गया और 50 में और ज्यादा बढ़ गया. ये ऐसे, ये हमारे पॉइंट्स आए. अब आप इन पॉइंट्स को जब मिलाते हैं तो वन टू अदर, सेकेंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ ऐसे नहीं मिलाते, बिकॉज देयर इज नो शार्प चेंज, देयर इज ऑलवेज ए ग्रेजुअल चेंज. ये जो चेंज है दैट इज ए स्मूथ चेंज, ग्रेजुअल चेंज. सो वी मेक द चेंज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्मूथ कर्व. तो यहां पर हमको ना एक कर्व बनाना पड़ता है. वो कर्व जब हम बनाते हैं, सो दैट कर्व मे नॉट पास थ्रू ऑल द पॉइंट्स. हो सकता है कोई पॉइंट की रीडिंग हमारी थोड़ी सी कम, थोड़ी सी ज्यादा. तो अगर हम ऐसे ऐसे मिला देंगे, देन दिस विल बी ये ऐसे इस तरह का ग्राफ बनेगा. That we are not supposed to make. We are supposed to make a very smooth graph, curve. तो वो smooth curve हम कैसे बनाते हैं? We make a freehand drawing. देखिए इस तरह से, whatever is possible कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट उसमें आ जाए, पर अगर नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं. इस तरह से बना दिया हमने. ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर चला गया, ये पॉइंट थोड़ा सा बाहर रह गया, डजंट मैटर. कोई थोड़ा सा बाहर है, कोई थोड़ा सा अंदर है, लेकिन ये कर्व कैसा बना? स्मूथ. ये कर्व हमको बनाना है. और जब आप ये कर्व बनाएंगे तो देखिए इसका जो बॉटम है, ये बॉटम, ये वाला, ये बॉटम आपकी जो रीडिंग है इससे भी नीचे आता है. और ये हमको ये वाला क्या देता है? डेल्टा मिनिमम. नहीं तो हम क्या सोचते, ये मिनिमम वैल्यू है या ये मिनिमम वैल्यू है, ये दोनों. जबकि मिनिमम वैल्यू इससे भी थोड़ी नीचे आएगी, उसका हमको पता ही नहीं लगा. क्यों? क्योंकि हमने इतना आई तो बनाया ही नहीं था कभी भी. ये हमने कितना बनाया था? 35. उसके बाद कितना बनाया? 40. 37 बनाया ही नहीं तो मिनिमम आता. तो ये कैसे पकड़ में आएगा? वी विल मेक ए स्मूथ ग्राफ सो दैट टिप ऑफ द ग्राफ विल बी बिलो दिस.
राइट। ऐसा बना के हम इसको करेंगे, इसकी रीडिंग देखेंगे, दिस रीडिंग इज डेल्टा एम, और ये डेल्टा एम की वैल्यू हम वहां पर रखते हैं एंड वी फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन वी गेट द एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यही आपको अपने एक्सपेरिमेंट में करना है। समझ में आ गया ग्राफ क्यों बनाना है, राइट। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रिज्म की एक सिचुएशन में इतना आप नहीं कर पाएंगे, दिस विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करते हैं, एक रे के लिए एक डायग्राम बनाते हैं, फिर दूसरी के लिए, फिर तीसरी के लिए, फिर चौथी के लिए, सो दैट विद डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट की लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, सबकी बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और उसके बाद पिन देख के आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालते जाते हैं। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रैक्टिकल। ओके, तो ये उसका थ्योरी पार्ट है। नाउ इन दिस वी गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब एक चीज देखिए, हमने एक प्रिज्म बनाया जिसमें एक वॉल ग्लास की है, ये वॉल भी ग्लास की है, और उसके बीच में पानी भर दिया। सब वॉल ग्लास की बनाई, प्लेन ग्लास की, और उसके अंदर पानी भर दिया। Now we do this experiment and find out the refractive index. Now that refractive index is it a refractive index of glass or is it refractive index of water? So our test is, which is the one which has got two surfaces inclined to each other? Is it water or is it glass? This is glass wall. What about these two surfaces parallel to each other? तो ये प्रिज्म का एक्शन नहीं करेगा। ये वाला ग्लास ऐसा है, ऐसे, ये भी कैसे है, पैरेलल, ये भी प्रिज्म का एक्शन नहीं करेगा। इसके बीच जो पानी भरा है उसके दोनों प्लेन कैसे हैं, इंक्लाइन टू ईच अदर। सो दिस इज ए प्रिज्म ऑफ वाटर, नॉट द प्रिज्म ऑफ ग्लास। समझ आया? तो जो हमको म्यू की वैल्यू मिलेगी वो किसकी होगी, water की, not of the glass. Now we take out the water and put out glycerin. अब म्यू की वैल्यू किसकी मिलेगी, ग्लिसरीन की। उसको निकाला, we put the kerosene. Now we get the refractive index of kerosene. That is how, with help of a empty prism, we find out refractive index of different liquids, transparent liquids. समझ आ गया? Okay. So this is all about prism and deviation done by the prism. Right? So we close it here, and the next class we will study different colors and how different colors are formed. Right? With help of prism, and that is dispersion. So that will be our next topic.